Hello students, how are you? Welcome back in this chapter again. In the first part, I taught you that the Duchess always used to take his master in his light gig, and now from here we will start this chapter. It will be concluding. I will try to complete this chapter in this class. We had a ploughboy, Dick, who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge. There is a field where blackberries are there. A boy, who is his ploughboy, came and plucked blackberries. When he had eaten all wanted, he would have that he called fun with the colts. And after eating, he always teased the colts, throwing stones and sticks at them and to make them gallop. But but colts are not mind him because they can gallop enough. But sometimes a stone would hit and hurt us. But when he threw the stones, they hurt by that. One day he was at this game and did not know that the master was in the next field. Next day the boy came again and he teased the colts. But next of the field the master is there and he watched him. And he jumped over the hedge in a snap and catching Dick by the arm. What happened, children? The Dick caught by that master, and then the master gave him such a box on the ear as made him roar with a pain. He beat him with a box near the ear, and by that he roared with pain and surprise. As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. Bad boy! The master cried out that he is a bad boy who chases colts. This is not the first time, but it shall be the last. He warned him that Dick, that don't come again. It should be the last time for him. There, take your money and go. I shall not want you on my farm again. So we never saw Dick any more. Old Daniel, the man. The name of that master was Daniel. The man who looked after the horses was just as gentle as our master. So we were well off. Okay, the darky, what is he saying? वो क्या बोल रहा था? The name of that master was Daniel. उसका जो मास्टर था उसी के जैसा यह डेनियल भी बहुत ही काइंड पर्सन था. Before I was 2 years, something happened. And now the story has taking a interesting turn. Okay, before I was 2 years, something happened. कोल्ट ने क्या कहा कि जब तक मैं 2 साल का होता उसे कुछ ऐसा याद आया कि जो कभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो कभी भूल नहीं सकता. I have never forgotten. Keep your book in front of you, then only can you understand where I am reading. Before I was 2 years, something happened. Okay, what he is saying, before जब तक मैं 2 साल का होता तब तक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता. It was early in the spring. Here the mention the weather. It was spring. There had been a little frost in the night. Okay, little frost means little coldness in the night, and a light mist. Mist means fog. Still hung over the woods and meadows. Okay, meadow पर घास पर और woods में जंगल में थोड़ा थोड़ा fog था. We heard what sounded like the cry of dogs. What he heard? क्या उसने सुना? The cry of dogs. The oldest of the colt raised his head, pricked his ear and said, जो भी वहाँ पुराने हॉर्स थे पुराने कोल्ट्स थे
उन्होंने अपने सर ऊपर कर लिए, अपने कान खड़े कर लिए और बोला दे आर हाउंड्स। क्या था? हाउंड्स मीन्स शिकारी कुत्ता। एंड सेंटर्ड ऑफ followed by the rest of us to the upper part of the field where we would look over the hills and see several fields beyond. सभी स्मूथली आ रहे थे दौड़कर रश में फील्ड के थ्रू, बहुत सारे फील्ड्स थे उसके थ्रू सभी दौड़ के आ रहे थे। माई मदर्स एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वेयर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर। सभी वहाँ खड़े थे, उसकी माँ भी वहीं खड़ी थी और जो राइडिंग हॉर्स थे उसके मास्टर्स के वो भी वहीं खड़े थे। एंड सीम्ड टू नो ऑल अबाउट ही, और ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें सब कुछ इसके बारे में पता था, वेल नॉन थे ये इंसिडेंट के। दे हैव फाउंड अ हेयर said my mother. What his mother said? They have found a hare. मीन्स उसे एक खरगोश मिल गया था। किसे? जो शिकारी कुत्ता और सारे हॉर्स आ रहे थे, राइडिंग हॉर्स, उसके बारे में उसकी माँ ने कहा कि शायद उन्हें हेयर दिख गया, खरगोश दिख गया। If they come this way we shall see the hunt. और उसकी माँ ने क्या कहा कि यदि वो इधर आएंगे दौड़ते हुए तो हम उस हंट को देख सकेंगे, शिकार को होते हुए देख सकेंगे। दे वेयर हंटिंग ऑफ हेयर। हु वेयर हंटिंग हेयर? द हाउंड्स एंड द राइडिंग हॉर्स मैन। एंड soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. वहाँ किस चीज़ का फील्ड था, किस चीज़ का खेत था? व्हीट का खेत था, गेहूं का खेत था, जिसे सारे कुत्तों ने रुइंड कर दिया। ओके, बर्बाद करके आगे बढ़ गए। जब वो दौड़े तो व्हीट का जो फील्ड था वो बर्बाद हो गया, रुइंड हो गया। आई हैड नेवर हर्ड सच अ नॉइज एज दे मेड। दे मेक नॉइज, दे डिड नॉट बार्क नॉर हाउल। वो चीख चिल्ला नहीं रहे थे, वो भौंक नहीं रहे थे। नॉर वाइन बट केप्ट ऑन यो 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 यो। ओके, व्हाट दे मेक साउंड? यो यो। दे डोंट बार्क एंड नॉर हाउल एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मेन ऑन हॉर्स बैक। और उसके बाद कौन आया? नंबर ऑफ मेन, घोड़े पर बैठे हुए बहुत सारे पीपल आए। ऑल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड। सभी बहुत ही स्पीड से रन कर रहे थे। द ओल्ड हॉर्सेस snorted and looked eagerly after them and we young colts wanted to be galloping with them. सभी बहुत स्नॉट होकर देख रहे थे, इगरली देख रहे थे, और जो यंग कोल्ट्स थे वो चाहते थे उसके साथ ही गैलप करे, उसके साथ ही रन करे। बट दे वेयर सून अवे इन टू द फील्ड्स। बहुत ही जल्दी वो लोग चले गए लोअर डाउन, नीचे की तरफ। हियर इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू स्टैंड। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग एंड ran about everywhere with their noses to the ground. और बार्किंग डॉग्स थे वहीं रह गए, और जो हॉर्समैन थे बैक पर आए थे राइडिंग करके, वो लोग आगे बढ़ गए। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेड द ओल्ड हॉर्स। हॉर्स ने क्या कहा कि हम लोगों ने लॉस्ट कर दिया सेंट। सेंट यहाँ पर दिया हुआ है हंट के लिए, सीन के लिए। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। उसने क्या कहा? शायद हेयर भाग गया, चला गया। व्हाट हेयर? आई सेड। उसने पूछा, कॉल डार्की ने आस्क्ड किया, व्हाट हेयर? ओह आई डोंट नो व्हाट हेयर, लाइकली एनफ इट मे बी वन ऑफ आवर ओन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स। ओके, उसने क्या कहा कि मैं नहीं जानता कौन सा हेयर था, हो सकता है जंगल में से कोई आया हो। एनी हेयर दे कैन फाइंड, कोई भी हेयर वो लोग फाइंड करते हैं। विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर। उसके पीछे डॉग और मैन उसके पीछे दौड़ लगाते हैं टू गेट दैट हेयर। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स बिगेन देयर यो यो again and back they came all together at full speed, making straight for our meadow at part where the high bank and hedge overhang the brook. उसने क्या कहा?
कि कोई भी हेयर जब वो लोग देखते हैं तो वो उसका पीछा करते हैं, और उसके पीछा करने में हमारा हेज, हमारा फील्ड सब कुछ रुइन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नाउ वी शैल सी द हेयर, तभी उन्होंने हेयर को देखा। सेड माई मदर एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट, सब वो हेयर बहुत ही डरा हुआ था। रस्ट बाय द मेड फॉर द ओट्स, वो जंगल की तरफ दौड़ा। On came the dogs, they burst over the bank, leaped the stream, and came dashing across the field, followed by the huntsmen. डॉग भी जो था ओवर द बैंक, लिफ्ट मीन्स छलांग लगाना स्ट्रीम का, सभी उसके पीछे दौड़ लगा रहे थे। हंट्समैन भी उसके पीछे थे। सेवरल मेन लिफ्ट देयर हॉर्स, लिफ्ट मीन्स छलांग लगाना, हॉर्स पर लिफ्ट कर रहे थे। क्लीन ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स, द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, वो क्या ट्राई कर रहा था? फेंस को पार करना। फेंस क्या होता है चिल्ड्रन? व्हाट इज फेंस? फेंस जब हम लोग किसी गार्डन को चारों बगल घेरते हैं, दैट इज कॉल्ड फेंस। जब बम्बू स्टिक लगा के हम लोग गार्डन को चारों तरफ से घेरते हैं ना, सराउंडिंग करते हैं, तो वो इसी को फेंस कहते हैं। तो वो हेयर ने क्या किया? ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस। इट वॉज टू थिक, फेंस था बहुत ही मोटा, फेंस लगा हुआ था। शी टर्न्ड शार्प अराउंड टू मेक फॉर द रोड, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो बहुत ही लेट हो गया, वो नहीं कर पाया। The dogs were upon her with their wild cries. We heard one shriek, and that was the end of her. कि डॉग ने उसके ऊपर हमला कर दिया और यह उसका अंतिम समय था। One of the huntsmen rode up and whipped up off the dogs, for they would soon have torn her to pieces. ठीक है, तब हंट्समैन ने क्या कहा? वो भी रोड अप, ऊपर से आया और उसने डॉग्स को whipped off the dogs, for they would soon have torn her to pieces, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया था? उसे पीसेस में काट दिया था। He held her up by the leg, torn and bleeding, and all the gentlemen seemed well pleased. और सभी जेंटलमैन ने यह देख के बहुत ही खुश हुए, वो लोग ब्लीडिंग होता हुआ उसे देखकर। As for me, I was so astonished that I did not at first see what was going on the brook. But when I did look, there was a sad sight. But Darky was so upset to say this. He was not pleased. It was very sad sight for him, for fine horses were down. उसने क्या देखा कि इतने अच्छे हॉर्सेस थे जो कि डाउन हो गए थे, गिर गए थे। One was struggling in the stream. एक स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ के लिए स्ट्रीम में, स्ट्रीम मीन्स झरना। And other was growing. अदर क्या कर रहा था? दूसरा कड़ा रहा था ऑन द ग्रास। ग्रोइंग मीन्स कड़ाहना, ग्रास पर वो कड़ा रहा था। One of the riders was getting out of the water covered with mud. एक राइडर भी बहुत ही घायल हुआ, इंजर्ड हुआ, वो वाटर से मड से कवर था, वाटर में। द अदर ले क्वाइट स्टिल, और जो दूसरा था वो लेटा हुआ था एकदम स्टिल, शांत। हिज नेक इज ब्रोकन, सेड माई मदर, उसकी मम्मी ने क्या कहा? कि उसका शायद गर्दन टूट गया। एंड सर्व्स हिम राइट टू, सेड वन ऑफ द कोल्स ने भी कहा उसे मदद की ज़रूरत है। आई थॉट द सेम, बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विथ हस, उसने भी कहा, लेकिन माँ का उसका ऐसा मत नहीं था। I well know, she said, you must not say that, but though I am an old horse and have seen and heard a great deal, I never yet. तो उसकी माँ ने क्या कहा कि तुम अभी नए हो, तुम छोटे हो, तुमने ऐसा नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। तो उसके लिए ये सरप्राइज नहीं था, उसकी माँ ने ऐसा बहुत बार देखा था, ऐसा है हंटिंग। Could make out why men are so fond of this sport. तो डार्की ने क्या कहा कि मुझे पता नहीं चला लोग इसको इतना फॉन्ड क्यों करते, इतना इसके आदि क्यों हैं। They often hurt themselves, वो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। The horsemen are also get hurt ना, so Darky saying that they often hurt themselves,
ऑफ्टेन स्पॉइल गुड हॉर्स, वो लोग अच्छे घोड़े को भी बर्बाद कर रहे हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और फील्ड को भी रुइन कर रहे हैं, खेत को भी रुइन करते हैं। एंड ऑल फॉर हेयर, और यह सब किसके लिए? एक खरगोश के लिए, और ए फॉक्स, फॉक्स के लिए, और स्टैग के लिए। दैट दे कुड गेट मोर इजली सम अदर वे, वो इस सब को दूसरे वे में भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, उसने क्या कहा? हम लोग बस घोड़ा है और हम लोग ऐसा उन्हें सलाह नहीं दे सकते हैं। While my mother was saying this, we stood and looked on. Many of riders had gone to the young man, but my master was the first to raise him. Okay, उसके मास्टर आगे आया उसका हेल्प करने के लिए। His head fell back, और राइडर्स का हेड जो था पीछे गिर गया। His arms hung down, उसके हाथ भी लटक रहे थे। Everyone looked very serious. There was no noise now. Even the dogs were quiet and seemed to know that something was wrong. Look what happened, children. All are very keep quiet. That what is going on. All knows that the man was dead. So there was pin drop silence there. They carried him to our master's house. सभी उसे कहाँ ले आए? मास्टर के हाउस में। I heard afterwards that it was a squire only son. वो जो आदमी जो डेड किया वो कौन था? स्क्वायर्स का अकेला बेटा था। A fine, tall young man and pride of his family. वह बहुत ही सुंदर और अपने फैमिली का प्राइड था। They were now riding in all directions. The doctors and the squire gardens to let him know about his son. Okay, सभी कुछ गए डॉक्टर के पास और कुछ गार्डन के घर में बताने के लिए उसके सन के बारे में। When born, the farrier came to look at the black horse they lay growing on the grass. He felt him all over and shook his head. One of his leg was broken. ठीक है, वो घोड़े के बारे में बता रहा है, वो भी ग्रोइंग कर रहा था, करा रहा था, उसका भी एक लेग टूट गया था। Someone ran to our master. कोई उसके मास्टर के घर गया। And come back with gun. और गन के साथ आया। Presently there was a loud bang. Bang means the sound of gun. And a dreadful shriek. And then all was still. The black horse moved no more. और उसने क्या क्या? गन लेकर उस हॉर्स को उसने बैंग कर दिया, मीन्स शूट कर दिया, क्योंकि उसका एक लेग नहीं था। So he shoot that horse. My mother seemed much troubled. मेरी माँ भी बहुत ही दुखी हो गई। She said she had known that horse for years and that his name was Rob Roy. उसने क्या कहा? मैं इस हॉर्स को जानती थी, इसका नाम रॉब रॉय था। He was a good horse and there was no vice in him. उसमें कोई बुराई नहीं थी। She never would go to that part of the field afterwards. वो फिर कभी उस तरफ नहीं गई, उस फील्ड की तरफ नहीं गई। Not many days after we heard the church bell tolling for a long time and looking for over the gate. We saw a long strange black coach that was covered with black cloth and was drawn by black horses. After that came another and another and another, and all were black. While the bell kept tolling. They were carrying young Gordon to the churchyard to bury him. He would never ride again. वो अब कभी उस पर राइड नहीं कर सकता था। सभी एक दल के साथ आ रहे थे, चर्च का बेल भी टॉलिंग आवाज़ कर रहा था। What they did with Rob Roy, I never knew. उन्होंने रॉब रॉय के साथ क्या किया वो उसे पता नहीं चला। But it was all over one little hair. अब यह सब किसके वजह से हुआ? सिर्फ एक खरगोश की वजह से। Now the story is finished and the question answer of this chapter and chapter 2 I will give you in the PDF. So children, please subscribe my channel that you can get the video soon. Okay, bye children.